So I guess I'm doing it well. So let's start. So I recorded it multiple times, and after that I guess it is now perfectly working. So আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো, don't worry, I will tell in English, Hindi and Bengali, in 3 languages. Don't worry about it. So we are starting competitive programming journey. We are not starting with any language or something, but yes, I will do competitive programming in Java. That is very rare that anyone do competitive programming in Java, because everyone prefers C++ over Java. That's their choice. I will do competitive programming in Java only, at least for now. So let's start. It is the first problem of our competitive programming journey. It's a code forces and round to 173 bits plus plus. It's standard problem, an easy problem too. I solve it multiple times. I am not something very pro or something. I am just trying it out and try to teach you the guys. If you want any assistant, you can message me or something, but yes, that's easy. Okay, so for language input, you have to give Java 832-bit, and it is important, otherwise you will get time complexity error, time error. So let's start. So আমরা যেটা বলছি, that is bit plus plus বলছে, it is a classical language of bitland is bit plus plus. The language is peculiar and complicated. Just simple storyline. The language is peculiar because it has only one variable. The reason is it has only one variable. Achha, what is variable? Variable, we can consider variable as a haldi ka box. Okay, what is haldi? It is a jar for carrying some masala or something. So in that jar we fill up haldi. So variable is like a container in which we can pour something. So it has only one variable, and we will see that later on what is variable and something. But I am not teaching you language. You have some basic knowledge of language, like any language. You can do C++, C, Java. Don't do C, but C++, Java, Python, Rust, JavaScript. Except you can get timely error, you can do CP in Java, Python and C++ too. Okay, so in the language it is peculiarly one variable and two operations. Operation plus plus increases the value variable x by 1. मतलब क्या है इसका? मतलब है, अगर हमारे पास लिखा होगा प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस, then the value of the variable मतलब x increases by 1, एक से बढ़ जाएगा. and operation minus minus decreases the value of variable x by 1. अगर माइनस माइनस एक्स और x माइनस माइनस लिखा होगा तो x का जो भी वैल्यू होगा वो 1 से घट जाएगा. इट इज क्लियर? सो in the statement with plus plus sequence consisting of exactly one operation and one variable, and the statement without spaces, that is, it can only contain plus minus x, and executing a statement means applying the operation it contains. बहुत कुछ बोल दिया. मतलब क्या है? मतलब है जो ये बिट प्लस प्लस लिखा हुआ है, इट कैन ओनली कंसिस्ट इन वन वेरिएबल. एक पिक्यूलियर लैंग्वेज है, वन वेरिएबल है, पहले ही बोला था. कोई स्पेसेस नहीं है इसमें, सिर्फ प्लस माइनस और एक्स है और कुछ नहीं है. और जो भी होगा टेस्ट केसेस उसमें सब एक लाइन के बाद एक लाइन होगा. मैं समझा होगा इसे बाद में, बट अभी इसके लिए समझ लो. देन ए प्रोग्राम इन बिट प्लस प्लस इज गिवन. वो जो बिट प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसमें इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया हुआ है. इसे समझ के हमें कोड करना होगा. इज ए जनरलाइज फॉर्मेट. Okay, so
a programming of bit sequence each item to be executed and programming mean executed all contents. मतलब क्या है, मतलब जो बोला हर एक लाइन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. यू आर गिवन ए प्रोग्राम इन बिट प्लस प्लस, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज ज़ीरो, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. अच्छा, यहाँ पे बोला हुआ है कि एक्स का वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगा. फॉर दिस केस एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा. ठीक है, मतलब एक्स का वैल्यू हम खुद से नहीं पकड़ सकते. 3 और 4 हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है एक्स का वैल्यू ज़ीरो. कोड करने के वक्त देखेंगे, मैंने कोड ये करके सबमिट किया हुआ है, फिर मैं आपको समझाऊंगा. इनपुट, the first line contains a single integer n, that is 1 to 150 and the number of statement in the program. मतलब क्या है, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है. The line says हम जो n का वैल्यू चूज़ करेंगे, n एक इंटीजर है, जो n का वैल्यू हम चूज़ करेंगे 1 से 150 के बीच में, उतना ही लाइन का कोड होगा उसमें. लाइक इनपुट में हमारे यहाँ पे देखें, इनपुट में अगर हम देखें और आउटपुट देखें, इनपुट में पहले इनपुट में एक लिखा है, मतलब n का वैल्यू 1, मतलब उसके बाद कोड एक ही लाइन होगा. सो द आउटपुट इज़ 1. क्यों? और प्लस प्लस 1 है, x का वैल्यू 0 था, प्लस प्लस 1 मतलब, और x प्लस प्लस मतलब x का वैल्यू x से बढ़ जाएगा, 0 प्लस 1 इज़ 1. ओके, देन देयर इज़ 2, मतलब कोड का लाइन जो x प्लस प्लस और x माइनस माइनस है वो तो बिट प्लस प्लस का कोड है. अगर 2 लिखा हुआ है n का वैल्यू, सो x प्लस प्लस एंड माइनस माइनस x, मतलब x का वैल्यू पहले 0 था, x प्लस प्लस मतलब हुआ x प्लस 1, दैट इज़ 1, एंड माइनस माइनस x मतलब एक से एक हट जाएगा. पहले x का वैल्यू 1 हुआ, देन माइनस माइनस x मतलब x का वैल्यू 1 से घट जाएगा. सो द आउटपुट, फाइनल आउटपुट इज 0. वी कैन गेट दैट. So I guess the problem statement is very clear. अगर नहीं हुआ तो फिर से ये पढ़ लेंगे. The next n lines, जो पहले हमने n दिया उसी का n line contain each statement operation plus plus or minus minus and exactly one variable, that is x, and thus no empty statement. and this is डिपेंड नहीं करता. मतलब क्या बोल रहा है, अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस कोई भी सीक्वेंस में हुआ, ऊपर वाला जो ऑपरेशन दिया हुआ है, मतलब प्लस प्लस होगा तो एक से बढ़ेगा, माइनस माइनस होगा तो एक से घटेगा, वो किसी भी ऑर्डर में हो. अगर एक्स प्लस प्लस हुआ, अब प्लस प्लस एक्स हो, दोनों में सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा. दैट वर्ड्स द लैंग्वेज रूल्स आर. ओके, सो आउटपुट ऑफ द सिंगल इंटीजर, वी कैन गेट द आंसर इन सिंगल इंटीजर. दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग. and this is okay. So we will code it now. मतलब मैंने कोड किया हुआ है, मैं आपको अभी समझाऊंगा क्यों, क्या, कैसे किया. मैं भी लाइव नहीं कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं लाइव कोड नहीं करूँगा, बट ये कोड मैंने खुद से ही किया है, सो इट्स फाइन. एंड मैं इसमें पूरा कोड नहीं समझाऊंगा, बट फॉर लाइन 4, लाइक फ्रॉम 1 to 4, ये समझ लो ये एक बॉयलर प्लेट कोड है. मतलब ये VS कोड अपने खुद से देता है. अगर तुम किसी फाइल को सेव करोगे, ये अपने से देगा, ये तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने से होगा. सो इट इज़ ए डिफ़ॉल्ट कोड. डिफ़ॉल्ट कोड, ये तो डिफ़ॉल्ट कोड है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है. ये लाइन 5 भी डिफ़ॉल्ट कोड ही है. डिफ़ॉल्ट कोड लिख दिया DC. So from the next line the interesting thing begins. ये भी एक इनपुट स्टेटमेंट है. ठीक है, जब मैं थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट कर लूँगा, देन आई विल स्टार्ट टू टीच. इफ़ माई रीच गेटिंग हाई एंड हाई, देन आई विल लाइक 500 भी सीरियस स्टूडेंट अगर हुए तो I will start teaching Java, because I have gone through Java a lot. Then I start CP now, and I don't know if I continue or not, but I think it's interesting and problem solving is interesting, so I will do that and try to teach you guys. So int in equals to sc dot next int. इसका मतलब है पहले हमने एक स्कैनर लिया जो क्या करेगा, इनपुट लेगा यूज़र से. क्या इनपुट लेगा उसको हमने दूसरी लाइन में लिखा.
इंट है डाटा टाइप जिसको हमने एक नाम दिया n इक्वल्स टू SC जो एक स्कैनर है डॉट नेक्स्ट इन, मतलब वो इंटीजर डेटा ही लेगा बिकॉज हमने यहाँ पे इंटीजर फिक्स कर दिया है, सो ये इंटीजर डेटा ही लेगा. देन देयर इज int x इक्वल्स टू 0 बिकॉज अगर क्वेश्चन में याद हो उसने बता दिया था कि x का इनिशियल वैल्यू तो 0 ही है, तो इनिशियल वैल्यू के लिए हमने ये पकड़ लिया. देन देयर इज फॉर, अब उसने बोला था जो n का वैल्यू होगा उतनी बार ही कोड चलेगा. दैट्स वाई वी रन ए फॉर लूप. जब हमें पता होता है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हमें पता होता है कितनी बार कोड मतलब कोड रन करेगा उसी वक्त हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम यूज़ नहीं कर सकते. Then there is string. So why we use string? That's the most important thing and the beauty of the question. The question says if we see x plus plus or x minus minus then we have to do that. और टर्मिनल में और आउटपुट स्ट्रीम में ये x प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस तभी हो सकता है जब वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो. इसको आप सोचिएगा तो आपको ये जल्दी में समझ आ जाएगा. सो वी अगेन डिफाइन a string that is data type, name it as a equals to sc dot next, जो string भी ले सकता है कुछ भी ले सकता है. that's why we use string. we can use next string also, but I should use or next line, sorry next string, not next string, it's next. Then we give a condition a dot contains. what contains property do I write it here. You can get the code in my GitHub profile and I will try to attach my GitHub profile with the video itself, but you can, it's helper.dev, you can search it on Google, you can get that, and I recently solved this problem so you can get that easily. So if a dot contains, मतलब a में अगर ये है, a में क्या है, तो क्वेश्चन इज a में क्या है. a में है x प्लस प्लस और x माइनस माइनस और माइनस माइनस एक्स और प्लस प्लस एक्स, ये चारों में से ही कुछ होगा. ओके, स्ट्रिंग ए में इन्हीं में कुछ होगा. अगर प्लस प्लस है तो हम x को प्लस प्लस कर देंगे. ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो क्या करता है, x के वैल्यू को एक से बढ़ा देता है और उसको x में ही स्टोर कर लेता है. ओके, और ये क्या है, x के वैल्यू को खुद से ही एक से घटा लेता है, मतलब कमा लेता है, घटा लेता है, तुम जो बोलना चाहो. वहाँ पे वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ पे ये न्यूमेरिकली बिहेव करेगा. ओके, बट एज वी डिफ़ॉल्टली से दैट x इक्वल्स टू 0, दो सो x का वैल्यू यहाँ पे तो 1 ही होगा, दैट्स फॉर श्योर. एंड यहाँ पे x का वैल्यू -1 हो सकता है अगर x का वैल्यू नहीं बढ़ा. देन वी प्रिंट द x दैट वी हैव टू डू टू पास द टेस्ट केस. ये भी एक बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट है. यू कैन गो एंड सर्च हाउ टू प्रिंट स्टेटमेंट इन जावा. प्रिंटिंग द आउटपुट, it's nothing that printing the output, and it's for good practice we close the scanner, and that's how the problem is solved. I guess it is clear.